सेकेंडरी स्कूल के तीनों कैंपसेस के दरमियान मुकाबला मुनक्किद किया गया है, जिसमें तकरीर, नात और हुस्न क़िरात शामिल है। सबसे पहले दावा देना चाहूँगी कैंपस 1 से हाफिज एहसन मिनाल के वहाँ स्कूल नूर और बाबरकत महफिल को अपनी खूबसूरत आवाज़ से मुनव्वर फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा नु'लिन व मा यख्फा अलल्लाहि मिन शै'इन फिल अर्दि वला फिस समा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक़ इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والأرض وضعها للأنام
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم सुभान अल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم सुभान अल्लाह। इसी के साथ हुस्न क़िराअत का मुकाबला इख्तिताम पजीर। हम इंग्लिश स्पीच की जाने पढ़ते हैं आगे। The Prophet Muhammad said, "Indeed, among the believers with the most complete faith is the one who is the best in conduct and the most kind to his family." I would like to invite Rama Asif from Campus 1 to come on stage and express wonderful thoughts about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. कुछ दौलत पर नाज करते हैं, कुछ सूरत पर नाज करते हैं, कुछ दौलत पर नाज करते हैं, कुछ सूरत पर नाज करते हैं, जिनके
मोहम्मदी होने पर नाज करते हैं। Honorable teachers, principals and communities and my friends, Assalamu alaikum. In the name of Allah, who is the most merciful and gorgeous, if I am talking about one of the best leaders, best inspiration, only one name comes in our mind, the one and only Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He is the great personality in the world. After Allah comes his rank. If Muhammad had not come in the world, there would have been Muslims are appeared in ignorance. If Muhammad had not come, he saved our ummah from the wordful assessment of Allah. He told us how to live as a Muslim. He told us the rules that we can follow to reach heaven. He told us the way to reach Allah. He gave women their right. He starved for 7 days and tied stones on his stomach. By this act, he shown us we have not come to this world to just earn money and fulfill our dreams, but we have come like a traveler who has come only to place Allah, and then we have go to back to our God. Allah gave us a practical example of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam that can how we spend our life. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam spent his life for others. He always helped others. He did not like to say no to anyone. He loved children. He never scolded anyone and never fought with anyone. Everybody wanted to listen to him. When somebody behaved him, teased him, injured him, he never replied him. But when this person needed our Prophet also had him. Not only his ideal of Muslims, but also non-Muslims liked her personality. This is no option left for us but to follow his teachings. The Quran and Sunnah are the basis of our religion. The holy lifestyle of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam guide is in our individual and collective life. If we want to get success in this life, we should follow the teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I hope that all of you will definitely follow the Sunnah told by you. As soon as we born, the call of prayers is given in our ears that you blessed. You are the form of this Prophet. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to shine as the sun in the darkness of darkness. If I start discussing this topic in detail, the sun will set, the day will end, but this topic will not reach to its end. इज़हारे इश्क़ से तो खुदा बिना रह सका, इज़हारे इश्क़ से तो खुदा बिना रह सका, तारीफ़े हुस्ने मोहम्मद में सारा कुरान लिख दिया. Thank you. Dear presidents, respected principals, teachers and the audience, Assalamu alaikum everyone. Today is the topic of my speech is the Holy Prophet, peace be upon him. A prophet is a messenger sent by God to impart divine guidance and the knowledge to human beings. In Islam, the Muslim believe that the Holy Prophet, peace be upon him, is the last to come in this world till the day of judgment. He helped the poor and needy. When our Holy Prophet, peace be upon him, reached the age of 40, he was committed by Allah subhanahu wa ta'ala for reach Islam. Our Holy Prophet, peace be upon him, started reaching Islam, that there is no God but Allah subhanahu wa ta'ala is the creator of universe and all human beings worldwide. Islam considered Prophet, peace be upon him, in the Abrahamic traditions and the mercy of all creations. The people of Makkah accept Islam very slowly. In the beginning, only a few people accepting the new religion. The new religion. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam taslima. In the name of Allah, who is the most beneficent and the most professional. Honorable teachers and my dear audience, Assalamu alaikum. Myself Zunaira Imran and I am class 9 from RPS Campus 3. Today I am honored to tell you about some aspects and disciplined teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him. There was a time when people who are the creators of history, the Prophet of Islam was indeed the architecture of history. He came to the people when everything was engulfed in the darkness of ignorance. There was a time when stealing, injuring, and even murdering people who are not considered even at all, when human being was not considered a human being.
when women was considered a burden of society, when girls were bullied as soon as they were born. This world was dragging itself towards annihilation. And then came the light from the heavens, the light of guidance, the infinite light to save this world from ignorance and darkness. Then came the most awaited, the barrier of great guidance, the educator of darkness, the noble and the journals, the truthful and the trust over them. Then came the Prophet Muhammad, peace be upon him. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Our Lord said that we sent you all prophets as the mercy of entire world. Dear audience, my prophet had told the status and rights of women. He had all of those perfections which were found from Hazrat Adam to Hazrat Isa alayhi salatu salam. He had the faith of Ibrahim alayhi salam, the selflessness of Ismail alayhi salam, the magnificence of Musa alayhi salam, the elegance of Harun alayhi salam, the beauty of Yusuf alayhi salam, and the decency of Yahya alayhi salatu salam. We are the followers of Prophet, peace be upon him. But unfortunately, we have deviated the path of loving mercy which was shown by our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. The people humiliated him, children stoned him, but look at the mercy of our beloved Prophet. He did not respond with hate, he did not respond with rage and retaliation. Instead, he forgave them and even prayed for them. We are the followers of Prophet Muhammad, peace be upon him. So we can't respond with hate. We must follow the footsteps of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. Choose forgiveness over revenge, mercy over retaliation, and hope over disappear. I thank you all for listening to me. Thank you so much. नात खानी का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाएंगे, मगर इससे पहले उर्दू स्पीच की जाने पड़ते हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या तुम्हें कदम तेरे हैं। मुकाबले उर्दू तकरीर का आगाज़ करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी कैंपस 1 से फिजा कि वो आए और अपने पुरजोश अंदाज में बारगाह रिसालत में अपने सुनहरे अल्फाज पेश करें। उसी के नाम से आगाज है इस शामियाने का, हमेशा जिसके दर पर सर झुका रहता है खामे का। बशर को फितरत इस्लाम पर पैदा किया जिसने, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम पर शैदा किया जिसने। सदर अली वक़ार, काबिल इज़्ज़त साज़े कराम और नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत का दम भरने वालों, अस्सलामु अलैकुम। आज मेरी तकरीर का मौजू है जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाबे वाला कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। तर्जुमा, ए पैगंबर, लोगों से कह दो कि अगर ये अल्लाह को दोस्त रखते हैं तो मेरी पैरवी करें, अल्लाह भी इन्हें दोस्त रखेगा। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। जनाबे वाला, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत से पहले मुल्क अरब की हालत निहायत अबतर थी। अंधेरा छा चुका था जुल्म का दुनिया हस्ती पर, कि शैतान था मुसल्लत हर बुलंदी और पस्ती पर। जनाबे वाला, जब मशीयत इलाही जोश में आई, इंसानों की हिदायत और रहनुमाई, हक व बातिल में फर्क, तज़किया नफ्स, दीन और हिकमत की तालीम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मोहसिन इंसानियत, मौल्लिम इंसानियत, फ़ख्र आदम व बनी आदम, रहमतल लिल आलमीन, खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाकर ज़माने जाहिलियत को ये पैगाम दिया कि मुअय्यन वक्त आया, जोर बातिल घट गया आखिर, अंधेरा मिट गया, जुल्मत का बादल छट गया आखिर। मुबारक हो कि दौरे राहत और आराम आ पहुंचा, निजाते दाइमी की शक्ल में इस्लाम आ पहुंचा। जनाबे वाला, मेरे नबी की ज़ात अक़दस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस कदर अजीज है कि
अपने नबी को जिस महीने में मबऊस किया वो रबीउल अव्वल का महीना अफजल, जिस दिन किया वो पीर का दिन अफजल, जिस वक्त किया वो सुबह सादिक का वक्त अफजल, जिस शहर में किया वो शहर मक्का अफजल, जिस कबीले में किया वो कबीला कुरैश अफजल, और जिस खानदान में किया वो खानदान बनु हाशिम सबसे अफजल। उन्हीं के नूर से हर सू उजाला हो गया आखिर, उन्हीं के दम से हक का बोल बाला हो गया आखिर। जनाबे वाला मेरे नबी की शान के क्या कहने कि आप जो दीन और शरीयत लेकर आए वो दीन इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन, आपकी किताब कलाम इलाही, आपकी अताअत रज़ाए इलाही, आपकी नाफरमानी गज़ब इलाही, आपसे मोहब्बत जन्नत की सनद, आपकी जुल्फ व लैल, आपका चेहरा मुबारक व दुहा, आपकी अदाए मुज़म्मिल व मुदस्सिर, आपका होदा बशीरा व नज़ीरा, आपके चेहरे की ताबानी सिराज व मुनीरा, आपकी ज़ात अक़दस रहमतन लिल आलमीन और आपका मकाम रिसालत खातिमुन नबिय्यीन है। तो जनाबे वाला अपने नबी की शान में मैं बस यही कहूँगी कि या साहिबे जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। शुक्रिया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मेरे असातिज़ाए कराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। हाज़रीन मोहतरम, आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका दिया गया है वो है मेरे आका दो जहान नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तहा। जनाब सदर, मेरे जैसी कम इल्म और कम फहम तालिब इल्म भला उस अजीम हस्ती की शख्सियत के बारे में क्या गुफ्तगू कर सकती है जिसकी अज़मत खालिक कायनात की ज़ुबान कुदरत से यूं अदा हुई। वरफ़अना लका ज़िक्रक, किसी मुकाम में फरमाया इन्ना अतैनाकल कौसर, तो कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल और या अय्युहल मुदस्सिर कहकर खिताब फरमाया। जनाब सदर, इस कायनात में सरवर कायनात खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल आफ़ताब बरक्षा की है, जो गारे हिरा से तुलू हो गए सारी कायनात पे छा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात की वो अज़ीम तरीन शख्सियत है जिनकी नसीब अज़ल से अब तक मुमकिन नहीं। आप इंसानों के लिए पैगाम निजात लेकर आए थे, बनी नूह इंसानों के लिए रहमत बनकर आए थे। मेरे नबी वो नबी थे जिनकी उम्मती होने की ख्वाहिश तमाम अंबिया ने की, और हम इतने खुशकिस्मत हैं कि हमें ये सादत बिन मांगे ही मिल गई। हमारे पैदा होते ही हमारे खाने में अज़ान दे दी जाती है कि मुबारक हो तुम उस नबी की उम्मत हो जिस पर खालिक दो जहां को भी नाज है। जनाब सदर, मेरे आका तो बादशाही में भी फकीरी करते थे, जिनके पास न सोना था न चांदी थी। मेरे सरकार तो टूटी चारपाई पर भी सुल्तान नजर आते थे। मेरी नबी की निगाहों में बिजली, लबों में तबस्सुम और चेहरे पर नूर था। मेरे आका तो सादे लिबास में भी ज़ीशान नजर आते थे। जनाब सदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधेरे और तारीकी में रोशन चिराग बनकर आए थे, गुनाहगार बंदे की सलामती बनकर आए थे। मेरे नबी की सीरत बेमिसाल थी, हुस्न बा जमाल था और किरदार ऐसा था कि काफिर भी फिदा होते थे आपकी सदाकत पर। जनाब सदर, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन और मोहब्बत का पैगाम थे, अंधेरे और तारीकी में रोशन चिराग बनकर आए थे। मेरे नबी वो नबी थे जिनके दम से दुनिया के हर कोने में उजाला फैला। हुजूर आए तो अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, हुजूर आए तो अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। सोते ज़हनों को जंग उतरा, मुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शौर आया। जनाब सदर, जब मैं सीरतुन नबी पर बात करती हूँ तो मेरे ज़हन में मक्का का मंजर घूमता है। मेरे नबी मक्का के ज़ालिम कुफ़ार के सामने उनके निशाने पर थे, मगर इरादे बुलंद थे, हौसले चट्टान की तरह थे और यकीन रब्बे करीम पर था। इरादे जिनके पुख्ता हो, निगाहें जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हो, निगाहें जिनकी खुदा पर हो, तलातों खेज मौजों से वो घबराया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस
मक्का पाक में हज़रत बीबी आमना के मकान से एक ऐसा नूर चमका जिसने सारे आलम को जगमग जगमग कर दिया। रोती हुई इंसानियत की आंख जिनकी तरफ लगी हुई थी वो अल्लाह पाक के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहान के लिए शाये पैरों पर बनकर जलवागर हुए। मुबारक हो के खत्मे मुरसली तशरीफ ले आए, जनाब रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ ले आए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। रहमत आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 रबीउल अव्वल को सुबह शादी के वक्त दुनिया में तशरीफ लाकर बेसहारों, गमले मारों, दुखियारों और दर की ठोकर खाने वाले बेचारों की शामे गरीबा को सुबह बहारा बना दिया। मुसलमानों, सुबह बहारा मुबारक, वो बरसाते अनवारे सरकार आए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मक्का पाक में दुनिया में जलवागरी होते ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में जलवागरी होते ही कुफ्र और जुल्मत के बादल छुट गए। शाह हिरा कसरा के महल पर जलजला आ गया। हैरान का जो आतिश गता 1000 साल से शोहजल था वो बुझ गया। काबे को बस्त आ गया, बुत सर के फल गिर पड़े। तेरी आमदी के बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी है बत्ती के हर बुत थर थरा कर गिर गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल हक मोहद्दिस दिलवी फरमाते हैं, बेशक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब्बे की विलादत शब्बे कदर से भी अफजल है, क्योंकि शब्बे विलादत सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में जलवागर होने की रात है। और जो रात अल्लाह पाक के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में जलवागरी होने की रात से इज्जत वाली बनी हो, उससे ज्यादा इज्जत और इकराम वाली है जिसने फरिश्तों के उतरने की वजह से इज्जत पाई है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह 12 रबीउल अव्वल मुसलमानों के लिए ईदों की भी ईद है। यकीनन हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहां में शाहे पैरों पर बनकर जलवा करना होते तो कोई ईद होती, ना कोई शब पे बरात, बल्कि कोनो मक्का की सारी रौनक होता। जाने जहां रहमत आलिमियान की कदमों की धूल का सदका है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जान है। अल्लाह पाक से दुआ हमने जो सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बढ़ते हैं मुकाबला नात ख्वानी की जानिब। खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफ़ा न करें। खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफ़ा न करें। हमारे मुंह में है ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। मुकाबला नात ख्वानी की इब्तिदा के लिए मैं बुलाना चाहूँगी अम्मार कैंपस 1 कि वो आए अपने दिल छू जाने वाली आवाज़ में नात ख्वानी का आगाज़ करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिल, मैं सजाता था सरकार की महफिल। मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है। तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊं। तेरी नात पढ़ते पढ़ते सल्लल्लाह, तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरी ऐसी हाज़री हो कि कभी ना वापसी हो। मेरी ऐसी हाज़री हो कि कभी ना वापसी हो। मिल सदका पंजे तन
करते करते तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते सल्लल्लाह, तेरी नात पढ़ते पढ़ते तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। मुझे मौत आए आका तेरा जिक्र करते करते सल्लल्लाह, तेरा जिक्र करते करते मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते सल्लल्लाह, तेरी नात पढ़ते पढ़ते किसी चीज़ की तलब है ना आरज़ू भी कोई, किसी चीज़ की तलब है ना आरज़ू भी कोई, तूने इतना भर दिया है कशकोल भरते भरते सल्लल्लाह, कशकोल भरते भरते मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते सल्लल्लाह, तेरी नात पढ़ते पढ़ते सुना है आकर आशिक के घर तशरीफ लाते, तो मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, चरागा या रसूल नात में भी जो है हमने एक फॉर्मेट दिया है, उस फॉर्मेट को फॉलो करें ताकि जो है वो टाइम के ऊपर प्रोग्राम खत्म हो सके, वरना तो शाम तक प्रोग्राम चलता रहेगा। और मैं यहाँ से बंद नहीं कर रहा, इसलिए कि अच्छी चीज़ नहीं है कि नात पढ़ रही हो आप पीछे से बंद कर दें, मैं बंद नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग खुद जो फॉर्मेट हमने आप लोग को जैसा बोला है उसके ऊपर चले। थैंक यू। सुभान अल्लाह। मुझे भी मदीना बुला मेरे मौला, मुझे भी मदीना बुला मेरे मौला, करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला। अब मैं दावत देना चाहूँगी कैंपस 2 से अम्मारा को कि वो आए और बारगाह रिसालत में नात का खूबसूरत हदिया पेश करें। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते पड़ पड़ किसले अला, फूल खिलते हैं पड़ पड़ किसले अला, झूम कर कह रही है ये बातें सबा, ऐसी खुशबू